Hello everyone, this is the third lecture on organic compounds containing nitrogen, and in this lecture we will discuss aniline. So we are going to start with preparation of aniline. So there are various methods of preparation of aniline. We will discuss a few of them. So first is by reduction of nitrobenzene. So nitrobenzene can be reduced with the help of tin and hydrochloric acid to give aniline. So this is a aniline, this is nitrobenzene. What is the formula of aniline? So aniline can be represented as benzene ring or NH2, or we can write down its formula, that is C6H5NH2. So this is the formula of aniline. So this is how we can prepare aniline. So actually tin is oxidized to give SnCl4 and then we get hydrogen to react with nitrobenzene. तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है. The next is from phenol. So how do we prepare aniline from phenol? So this is your phenol, and on reaction of phenol with ammonia in the presence of zinc chloride we get aniline and water molecule. The next is from chlorobenzene. So from chlorobenzene again with ammonia, chlorobenzene will form, this is our chlorobenzene, and it will form aniline along with ammonium chloride. The next is with benzamide. So benzamide, it can be prepared by Hofmann bromamide reaction. So तो bromine and KOH हम यूज करते हैं यहाँ पे. तो क्या होगा, यहाँ पे जो aniline होगा वो प्रिपेयर होगा. So CO will be removed, so it will form K2CO3 plus KBr plus H2O and main product is aniline. तो इसको हम Hofmann bromamidation से भी prepare कर सकते हैं. The next is physical properties of aniline. So aniline is basically a colorless oily liquid. It is insoluble in water but highly soluble in organic compounds like alcohols, ethers, etc. However, it is steam volatile. It is also highly toxic. So these are some physical properties of aniline. The next is chemical properties of aniline. So let's start with the basic nature. Aniline is actually basic in nature because of the presence of NH2 group. So because of the presence of NH2 group, it has basic nature. Now, since it is basic in nature, aniline will react with HCl, or you can say aniline is just C6H5NH2. It will react with HCl and form a salt. So it will react with C6H5NH2 and it will form C6H5NH3Cl. So this is how a salt can be prepared on reaction with acid. Similarly, C6H5NH2 plus H2SO4. So this is plus, this is minus, then whole twice it will form C6H5NH3 whole twice SO4. So it will form corresponding sulfates. So you can see here it shows the basic nature because it reacts with acids. Acids के साथ react करके क्या form कर रहा है, salts form कर रहा है. तो यहाँ से इसका basic nature का पता चलता है. The next is alkylation. तो alkylation का मतलब क्या होता है, that is the addition of alkyl group. अगर हम इसमें alkyl group add करते हैं तो that is called alkylation. अब इसका alkylation हम करते कैसे, that is, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक benzene ring है. So on reaction with alkyl halide we will react it with alkyl halide. तो एक alkyl halide हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे. For example, we have CH3I. So on reaction with alkyl halide it will form NHCH3 and minus obviously हाइड्रोजन और I रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो HI यहाँ से रिमूव होगा. आप चाहो तो फर्दर एल्काइलेशन कर सकते हो इसका ऑन रिएक्शन विद CH3I minus HI. So it will form NCH3CH3. So this is the alkylation of aniline. तो alkylation आप इस तरीके से कर सकते हो. The next topic is acetylation. So acetylation, that is addition of acetyl group. So acetylation कैसे करेंगे, NH2 on reaction with
एसिड क्लोराइड, सो फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल फॉर्म, यहाँ पे हमारे पास है बेंजीन रिंग, देन वी हैव NH, देन C डबल बॉन्ड O CH3, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिटाइलेशन एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, pyridine की प्रेजेंस में, तो pyridine will act as a catalyst here. The next reaction is benzoylation. तो यहाँ पे क्या, कौन सा ग्रुप होगा हमारे पास विद बेंजीन रिंग, तो इस समय हम यहाँ पे NH2 ग्रुप प्लस यहाँ पे अगेन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, CO CH3 की जगह पे यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होगा, तो इट विल बी लाइक दिस C डबल बॉन्ड O Cl एंड हियर वी हैव अ बेंजीन रिंग. तो in the presence of NaOH, that is in the presence of sodium hydroxide, what will happen, तो यहाँ पे H और Cl सेपरेट हो जाएंगे एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइलेशन. बेंजोइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो इट विल फॉर्म NH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइलेशन. आप चाहे तो -HCl यहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ पे HCl क्या हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है. सो दिस इज बेंजोइलेशन. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्कॉटन-बोमन रिएक्शन. स्कॉटन-बोमन रिएक्शन. so this reaction is also called Schotten-Baumann reaction. तो इस तरीके से ये रिएक्शंस हो सकती हैं आपकी. नेक्स्ट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. so in कार्बाइल अमाइन रिएक्शन we react aniline with chloroform and potassium hydroxide. you can also use sodium hydroxide. तो ये रिएक्शन बिल्कुल कैसे होती है जैसे अमाइन के केस में होता है. तो ये क्या फॉर्म करता है, एक कार्बाइल अमाइन फॉर्म करता है. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज फिनाइल कार्बाइल अमाइन. ये क्या हो जाएगा, फिनाइल कार्बाइल अमाइन, या आप इसको फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसको आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइल अमाइन आप कह सकते हो. तो ये क्या फॉर्म करेगा, फिनाइल कार्बाइल अमाइन, या आप इसको फिनाइल आइसोसाइनाइड कह सकते हो. देन द नेक्स्ट रिएक्शन इज डाईएजोटाइजेशन. तो डाईएजोटाइजेशन में क्या होता है, देखिए डाईएजोटाइजेशन में आपके पास है अमाइन. अमाइन को आपको पता है HNO2 और HCl के साथ हम अगर रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. क्या नाम है इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. फॉर्म करेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. तो अच्छा, इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है, डाइएजोनियम सॉल्ट हमारे पास पूरा एक सेपरेट टॉपिक है. तो ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये काफी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और लो टेम्परेचर पे ही ये थोड़ा स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे बहुत अनस्टेबल होता है. तो इसीलिए इसको हम यूज करते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए. द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे होता है, जो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो कौन होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं. तो क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये कैसा ग्रुप हो गया, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. ये कैसा होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. तो एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या करेगा, ये नाइट्रोजन क्या करता है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा. देन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके बाद ये डबल बॉन्ड हो जाएगा. देन दिस इज NH2, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है. देन बाकी के बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे. देन ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा. तो उसके लिए द थर्ड स्ट्रक्चर जो आपके पास बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन के पास अभी भी पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया. तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड्स नहीं हो सकते हैं, तो नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे आ जाएगा. देन उसके बाद ये क्या करेगा, इसको इधर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से बनेगा, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड और माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा. देन डबल बॉन्ड NH2 और लास्ट में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इसके साथ शेयर करेगा, तो ये डबल बॉन्ड उसके पास वापस. तो ये आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर हो गया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो क्या है, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, देखिए जब इसका हम हेलोजिनेशन करते हैं, आपको पता है हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन वगैरह हम इसका कर सकते हैं। आप इसका हेलोजिनेशन या नाइट्रेशन करते हो तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हेलोजन होता है ये क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी वजह से जब हेलोजिनेशन होता है तो हेलोजिनेशन ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्म करेगा। दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो जनरली हम क्या करते हैं, बाकी कंपाउंड्स में जनरली रिएक्शन क्या होती थी, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होता था या तो पैरा पे होता था, यहाँ पे दोनों एक साथ हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है ऑर्थो एंड पैरा पे। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कैसे करेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए हम जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो डीलोकलाइज हो रहा है ऑर्थो एंड पैरा पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसको हम और ज्यादा डीलोकलाइज कर देते हैं। तो अब करेंगे क्या उसके लिए हम यूज करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड की वजह से क्या फॉर्म करेगा, देखिए C+O राइट। अब यहाँ पे देखिए, जो नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के साथ भी डीलोकलाइज हो जाता है। जब ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, तो ये जो नाइट्रोजन होगा ये कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो अब देखिए, पहले डीलोकलाइजेशन जो हो रहा था केवल बेंजीन रिंग में हो रहा था, अब बेंजीन रिंग के बाहर भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसकी वजह से बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से उतना ज्यादा एक्टिव आपका बेंजीन रिंग नहीं रहेगा। मतलब या तो रिएक्शन ऑर्थो पे होगी उसके बाद, या तो पैरा पे, दोनों पे अब एक साथ नहीं होगी। तो इसीलिए अब हमारे पास इजीली आप इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कीजिए तो आपको या तो ऑर्थो या फिर पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड मिलेगा। तो ये आपको इसका ऑर्थो डेरिवेटिव और ये पैरा डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन इन दी एंड जो हमने ये अटैचमेंट किया था COCH3 उसको हटाना भी पड़ेगा। तो अब उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लीजिए इसका। तो COCH3COH सेपरेट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो इस तरीके से ये आपका पैरा डेरिवेटिव जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका ऑर्थो डेरिवेटिव जो कि आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इनकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट ऐड करना पड़ता है, ऐसा सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर पाए, ताकि उतना हाई रिएक्टिव ना रहे और जो सब्स्टिट्यूशन हो या तो केवल ऑर्थो पे हो या फिर पैरा पे हो। अदरवाइज ऑर्थो एंड पैरा पे दोनों जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। सबसे पहले हम इसको रिएक्ट करेंगे CH3CO दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन के लिए आपको पता है आपको किसके साथ ट्रीट करना पड़ता है, HNO3 और H2SO4। तो यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 है। तो सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो एंड पैरा, आपको ये पता है ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और ये जो ऑर्थो होगा ये माइनर प्रोडक्ट होता है। देन अगेन एसिटिक हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, तो CH3COOH वो सेपरेट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, दिस इज और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और ये हो गया हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से ये रिएक्शन इजीली हो जाती है। नेक्स्ट है आपका सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हम किसके साथ ट्रीट करते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है ये एसिड है और ये बेस है। तो जनरली पहले क्या करता है, सॉल्ट प्रिपेयर करता है। इसको अगर आप हीट करते हो अप टू 473 केल्विन तो ये वाटर लॉस करता है और ये फॉर्म करता है सल्फामिक एसिड। इट इज कॉल्ड सल्फामिक एसिड। अब इस सल्फामिक एसिड में होता है रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट। तो यहां पे हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा। तो देखिए रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि जो SO3H ग्रुप है वो यहां पे आ जाएगा और जो आपका यहां से हाइड्रोजन होगा यहां पे चला जाएगा। तो रीअरेंजमेंट में क्या बनाता है,
ये बनाता है आपका सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस सल्फोनिक एसिड की एक खास बात होती है, क्योंकि जो सल्फोनिक एसिड होता है इसका एक चीज आपको ध्यान रखना कि जो H होता है ये NH3 प्लस और SO3 माइनस, इसके साथ क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। इसका मतलब ये इस तरीके की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो क्या आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे देखो NH2 ये बेसिक ग्रुप है और ये क्या एक एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप्स इसमें हैं, तो ये इस फॉर्म में इस वजह से एग्जिस्ट करता है। इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। ये जनरली आपको तब देखने को मिलेगा जब एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। तो ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। तो ये कुछ रिएक्शंस थी किसकी, एनिलीन की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टेस्ट फॉर एनिलीन। तो टेस्ट बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे कार्बाइल अमाइन टेस्ट हो गया। तो कार्बाइल अमाइन आपको पता है कि जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, एनिलीन और क्लोरोफॉर्म को अगर आप ट्रीट करते हो KOH के साथ, एनिलीन क्लोरोफॉर्म और KOH को आप अगर हीट करते हो तो बॉईल करने पे इसको अगर आप बॉईल करते हो तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है ये कंपाउंड जिसको आप कार्बाइल अमाइन बोलते हो, फिनाइल कार्बाइल अमाइन। और आपको पता है जो कार्बाइल अमाइंस होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है, ऑफेंसिव स्मेल होती है। तो इस ऑफेंसिव स्मेल से, क्योंकि ये कार्बाइल अमाइन फॉर्म करेगा, तो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ये एनिलीन है। द नेक्स्ट है आपके पास डाई टेस्ट। तो डाई टेस्ट में क्या फॉर्म होता है, जनरली जब भी आप इसको डायएजोटाइजेशन करते हो, सबसे पहले डायएजोटाइजेशन, आपको पता है डायएजोटाइजेशन में क्या करते हैं हम, पहले उससे डायएजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। डायएजोटाइजेशन के बाद जब आप उसको डायएजोटाइजेशन के बाद उसको ट्रीट करते हो एनिलीन के साथ, तो ये एक रेड कलर डाई फॉर्म करता है। तो एक एजोडाई जिसको आप बोलते हो, एक एजोडाई फॉर्म करता है। तो इसके कलर से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक जो कंपाउंड है वो एनिलीन है। देन और भी आपके पास तरीके हैं, जैसे अगर आप एनिलीन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट करते हो तो वो एक वायलेट कलर्स कंपाउंड देगा। उसी तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इसको ट्रीट करते हो तो इंटेंस ब्लू कलर का एक कंपाउंड फॉर्म करेगा। और अगर आप उसके साथ साथ डाइल्यूट अगर H2SO4 करते हो, K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट को अगर आप ऐड करते हो तो ये एक ब्लैक कलर डाई फॉर्म करता है। तो ये सारे टेस्ट हो गए किसके लिए, एनिलीन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है यूजेस। तो यूजेस जो होते हैं एनिलीन के, तो वेरियस कंपाउंड्स को फॉर्म करने में हम एनिलीन को यूज करते हैं, जैसे कार्बाइल अमाइन फॉर्म करने में। उसके अलावा हम इसको किस चीज में प्रिपेयर कर सकते हैं, डायएजोनियम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने में। और डायएजोनियम सॉल्ट्स को आप बहुत सारे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हो गए।